What are amino acids? Amino acids are the compounds which contain amino group and carboxylic group within the same molecule. Amino group is basic, carboxylic group is acidic. Within the same molecule, we have basic as well as acidic group. And hence, these groups interact with each other to form internal salt, which is called as vitrine. इस तरीके से बच्चे NH3 पॉजिटिव CHR COO negative. Amino acids, especially alpha amino acids, they are very important for us. अल्फा अमीनो एसिड्स पे बात करने से पहले हम एक क्लासिफिकेशन इसकी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, and this classification is based on position of the amino group with respect to COOH group. अगर अमीनो ग्रुप अल्फा पोजीशन पे हो with respect to COOH, अल्फा पे, it is called alpha amino acid. अगर बीटा पोजीशन पे हो, बीटा पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप आपका आ गया, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हो, it is called beta amino acid. This is beta amino acids. Similarly, अगर गामा पे हो, अल्फा, बीटा, गामा, it is called gamma amino acid, and so on. Out of these, alpha amino acids are most important. इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स. अल्फा अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, this one, where R is the side chain, and they usually exist in the form of vitrine. Alpha amino acids are important structural components of proteins. In fact, proteins are polymers of alpha amino acids. जब हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, when we hydrolyze the proteins, about 26 amino acids isolated. 26. Out of these 26 amino acids, in 26 amino acid में से 20 amino acids are present in almost all proteins. Almost all proteins out of 26 amino acids. So we have 26 naturally occurring amino acids, and all these are alpha amino acids. And out of these 26, 20 amino acids are such that they exist in almost all proteins. ठीक है, in 26 में से 20 amino acids. और जो 6 amino acids remaining है, they are found in special tissues. They are not present in all proteins. They are found in special tissues. Next, we have the structure of 20 important amino acids. These are the 20 amino acids which are present in almost all proteins. Glycine, the simplest one is glycine. This is glycine, बच्चे. सबसे जो simple है, this is glycine. ये glycine. Then we have alanine. Alanine is this one. We have methyl group on the alpha carbon also. Amino group तो है ही है. All these are alpha amino acids. Then we have serine. We have CH2OH group. Then we have threonine. We have this group, CH3CHOH. ये group है. इस तरीके से बच्चे देखें, we have 20 amino acids, very important amino acids. Out of these 20 amino acids, we have categorized them into neutral, acidic, and basic categories. So this is another classification of amino acids: neutral, acidic, and basic.
न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हम उसको कहेंगे बच्चे, द अमाइनो एसिड्स विच हैव वन अमाइनो ग्रुप एंड वन सिलोएच ग्रुप। ये देखिए, दिस इज न्यूट्रल वन, ये भी न्यूट्रल है बच्चे, वन NH2, वन सिलोएच, एलानिन, ग्लाइसिन। एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर दोज विच कंटेन टू सिलोएच ग्रुप्स एंड वन NH2 ग्रुप। एसिडिक ग्रुप दो आ गए, तो ओवरऑल नेचर इसका क्या होगा? एसिडिक। इसका ओवरऑल नेचर क्या होगा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। 100% न्यूट्रल नहीं होता, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। और एक मैंने बोला बेसिक, बेसिक में अंडरस्टूड है वी हैव टू अमाइनो ग्रुप्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स वो होंगे जिसमें अमाइनो ग्रुप दो होंगे, टू अमाइनो ग्रुप्स, एंड एक अमाइड वाला ग्रुप है अमाइनो और एक सिंपल है एस्परजीन। इसके अलावा बच्चे देखिए, इधर दिखाता हूं आपको मैं, ये देखिए, ये वाला ग्लूटामीन, CONH2 है यहाँ पे, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इसी तरह NH2 और ये NH, ये भी बेसिक इन नेचर है। इस तरीके से these aspargine, glutamine, histidine, they are basic amino acids. This one basic amino acid, lysine, arginine, this is basic amino acid. So basic amino acid वो हो गए बच्चे जिसमें एसिडिक ग्रुप एक हो और बेसिक ग्रुप दो या दो से ज्यादा। उसके बाद है बच्चे नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, हाउ टू नेम द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को नेमिंग कैसे देनी, हाउ टू नेम। IUPAC नेम आप लिख सकते, वो तो आपके हाथ में है, इफ यू नो द नॉमेनक्लेचर। जैसे हम इसकी बात करें, इसका IUPAC नेम क्या होगा, नंबरिंग करनी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, इसको फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है, अमाइनो ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट, सो इट इज 2 अमाइनो इथेनोइक एसिड। You can give the IUPAC name, but amino acids are better known by their common names. Common names से ज्यादा जाने जाते हैं। जैसे इस वाले अमाइनो एसिड्स को हम ग्लाइसिन कहते हैं, इस वाले को एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, जैसे ऊपर लिखे थे नाम, एंड सो ऑन। इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वैलिन में, ये R आ गया ना, साइड चेन। दे डिफर इन द नेचर ऑफ R, these amino acids differ in the nature of R, इसमें RH है ग्लाइसिन में। In addition to this, 3-letter abbreviations are also used. First 3 letters, नाम के पहले 3 लेटर, इनकी एब्रीवेशन भी बन जाते हैं, इनकी एब्रीवेशन भी हम यूज करते हैं। द फर्स्ट 3 लेटर्स आर द नेम, ग्लाइसिन, एलानिन का ALA, वैलिन का भी ये है। दिस इज हाउ टू नेम द अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि अमाइनो एसिड्स हैव बोथ बेसिक ग्रुप as well as SD group within the same molecule. Same molecule में SD group भी है और basic group भी है, so react with each other to form the internal salt which is called as zwitterine. So they exist in the form of zwitterine. ये बच्चे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते? zwitterine form. They exist in the form of zwitterine. This is very important. Now classification, मैं ऑलरेडी 2 क्लासिफिकेशन आपको करवा चुका, इसे स्टडी कर लेते हैं। एक क्लासिफिकेशन आपको बताई बच्चे कि we have classified them into alpha, beta, gamma, delta, and so on. Alpha in which amino is alpha with respect to COH. Amino is beta with respect to COH, it is beta amino acid. Gamma with respect to COH, it is gamma amino acid. लेकिन हमारे लिए important कौन से? Alpha. These are the important structural components of what? Proteins. Alpha amino acids. मैंने पहले बता दिया आपको कि we have 26 alpha amino acids. Out of these, 20 are present in almost all proteins. This was general introduction about what? Amino acids. ये जनरल इंट्रोडक्शन थी। एक क्लासिफिकेशन और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। Another classification is एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ये मैंने करवा दिया आपको, ये बताया मैंने। इन एडिशन टू दिस एक और है, वो है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स। आउट ऑफ दीज 20 अमाइनो एसिड्स, 10 आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज एंड 10 आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, दे आर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स।
नॉन एसेंशियल, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज कर सकती है, एंड द अदर 10 विच आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, बाकी 10 जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये क्लासिफिकेशन ये भी है। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। प्रेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, आपकी सिलेबस में बच्चे दो ही मेथड है प्रेपरेशन के, डायग्रामेटिकली इसको शो किया, बाद में डिटेल में भी शो किया है। इन वन मेथड जिसको हम स्टैकर सिंथेसिस कहते हैं, इन दिस एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनाइड, वी गेट अल्फा अमीनो एसिड, शॉर्टकट में दिखाया है। एंड इन द अदर सिंथेसिस वी हैव पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, दिस वन treated with, this is ester, this is alpha carbon, alpha chloroester, alpha chloroethyl acetate, alpha chloroester। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड को हमने ट्रीट किया अल्फा क्लोरोएस्टर से, वी गॉट दिस प्रोडक्ट। कैसे बना मैं डिटेल में भी कहूंगा इसके। एंड देन इट इज हाइड्रोलाइज्ड, इसको हमने हाइड्रोलाइज किया बच्चे, एंड वी गॉट ग्लाइसिन अमीनो एसिड, वी गॉट द अमीनो एसिड। हाइड्रोलाइज किया वाटर से, एसिडिक मीडियम, देखिए दिस इज एसिडिक मीडियम व्हिच वी हैव गिवन, एंड वी गॉट द अमीनो एसिड। अगर आप यहाँ पे देखें, हमने ग्लाइसिन बनाया, अगर आप H की जगह कोई और ग्रुप लगा ले R, तो इस H की जगह R आ जाएगा, वी गेट अनदर अमीनो एसिड। एलानिन बनाना है, CH3 लगा लीजिए यहाँ पे। लेकिन ये जो मेन कंपोनेंट ये वाला हिस्सा, ये तो लेना ही लेना है बच्चे, अल्फा हेलो एस्टर तो लेना ही लेना है। यहाँ पे आप R की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R यू कैन गेट डिफरेंट अमीनो एसिड्स। ये बच्चे हमने दिखाया है डायग्रामेटिकली, this is diagrammatic representation, stacker synthesis, Gabriel thalamide synthesis. Now let us discuss in detail stacker synthesis. What happens, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, in stacker synthesis ammonium chloride react with potassium cyanide, बच्चे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा इधर, और इधर क्या बन जाएगा, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड डिकम्पोज होके दे देगा अमोनिया एंड HCl, so we get ammonia, HCl and potassium chloride. Ammonia, HCl, HCl is a weak acid, and potassium chloride. अमोनिया न्यूक्लियोफाइल बनके हमारे जो रिएक्टिंग मटेरियल है वो कौन कौन है, एक एल्डिहाइड है, एक अमोनियम क्लोराइड है, एक KCN है, ये तीन है ना। अमोनियम क्लोराइड और KCN ने रिएक्ट करके हमें दे दिया अमोनिया, HCl, KCl। अमोनिया एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल अटैक द एल्डिहाइड with displacement of pi bond, and we get RCHOH NH2, हमें ये मिल गया बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे लॉस ऑफ वाटर होगा, आपको पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा बच्चे कि एक कार्बन के साथ, याद है आप लोगों को बच्चे, बताइए, एक कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH अटैच हो जाए, क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। अब इस वाले कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, एक कार्बन के साथ OH और NH2 है, यहां भी क्या होता है बच्चे, लॉस ऑफ वाटर, HOH। ये भी दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे OH वैसे ही NH2OH, they also destabilize each other, and here again there is loss of water। जैसे इसमें होता वैसे इसमें होता, लॉस ऑफ वाटर, H यहां से, OH यहां से, H यहां से, ऐसे दिखाना चाहें आप, OH यहां से, लॉस ऑफ वाटर, एंड वी गेट एल्डीमीन, इमीन, एल्डिहाइड का इमीन, डबल बॉन्ड NH को इमीन कहते हैं, NH2 को अमीन कहते हैं, ये फर्क है, ठीक है। अब इसके ऊपर साइनाइड पिक्चर में आएगा, ये वाला साइनाइड, इट विल अटैक ऑन दिस, ये इसके ऊपर अटैक कर दे, Cn नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल बन के आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट NH नेगेटिव, NH नेगेटिव H पॉजिटिव ले लेगा, मीडियम से, HCN से भी ले सकता है H पॉजिटिव, या वाटर से ले सकता है H पॉजिटिव, एंड फॉर्म RCH NH2Cn। अब आपने पढ़ा है Cn की अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड से, व्हाट इट गिव्स, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया, इधर से अमोनिया बनती है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। साइनाइड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो तो अमाइड बनाते, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते। हमने क्या करनी, कंप्लीट, डाइल्यूट एसिड से करते तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती,
कंसंट्रेटेड एसिड से करते तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, हमने क्या करनी है डाइल्यूट, तो साइनाइड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वी गेट अल्फा अमीनो एसिड। तो मैं एक बार फिर से इस रिएक्शन को रिपीट करना चाहूंगा फॉर योर जनरल नॉलेज, आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं इस रिएक्शन को रिपीट करना चाहूंगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या है बच्चे, हमने क्या किया, वी टुक अमोनियम क्लोराइड एंड पोटाशियम साइनाइड, ammonium chloride and potassium cyanide. What we got? We got potassium chloride plus ammonia plus HCl। ठीक है बच्चे, RCHO another reactant हमारे पास है, इसके ऊपर किसने अटैक कर दिया, अमोनिया ने, जो अमोनिया भी बना, इट अटैक्ड हियर। ठीक है बच्चे, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। एक मिनट बच्चे, सेंटर में इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया एंड व्हाट वी गॉट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, वी गॉट R EH OH NH2। H पॉजिटिव छोड़ेगा, O नेगेटिव ले लेगा H पॉजिटिव, यहाँ पे फिर लॉस ऑफ वाटर हुआ बच्चे, व्हाट वी गॉट RCH डबल बॉन्ड NH, दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं एक ही कार्बन के साथ, देयर इज लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, एंड वी गॉट LDMine, हमें क्या मिल गया, LDMine विद लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे पिक्चर में कौन आ जाएगा, Cn नेगेटिव, HCN का Cn नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक करेगा एंड व्हाट वी गेट RCH NH नेगेटिव और यहाँ पे Cn, NH नेगेटिव HCN से या वाटर से मीडियम में होगा वहां से ले लेगा H पॉजिटिव माइनस OH नेगेटिव, आपको क्या मिल जाएगा RCH NH2 Cl। फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देनी, वाटर ओब्लिक H पॉजिटिव, साइनाइड मैंने बता दिया आपको, याद रखिए बच्चे, जब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा पर्पस हल हो गया, हमें क्या मिल गया, अल्फा अमीनो। R की वैल्यू को चेंज करके, दिस इज अल्फा कार्बन, यू कैन गेट डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। इफ R इज H, अगर R H होगा वी गेट ग्लाइसिन, अगर R मिथाइल होगा वी गेट एलानिन। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो दिस वाज स्ट्रैकर सिंथेसिस, ये कौन सी सिंथेसिस थी बच्चे, स्ट्रैकर सिंथेसिस। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे, ये देखिए, ठीक है, दिस इज स्ट्रैकर सिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन जो हमारा है ये ज्यादा सिंपल है, इसके लिए पहले यहां से समझा देता हूं, फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा। हमने क्या लिया बच्चे, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड इथाइल क्लोरोएसिटेट से ट्रीट किया, N नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक किया बच्चे, यहाँ से क्लोरीन निकल गया माइनस KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वी गॉट दिस। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर ली बच्चे वाटर से, एसिडिक मीडियम देके, ये न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक किया, इसी तरह से वाटर इधर भी अटैक किया, N नेगेटिव H पॉजिटिव, N नेगेटिव H पॉजिटिव, दैट इज NH2 CH2 COOH, और साथ साथ में इसकी हाइड्रोलिसिस भी होगी एस्टर वाले हिस्से की, एस्टर पार्ट आल्सो गॉट हाइड्रोलाइज्ड, वेरी सिंपल। तो बच्चे हम इसको आप व्हाइट बोर्ड पे समझा देते हैं आपको, लेट अस, तो हमने क्या किया, लेट अस क्लियर द ड्राइंग, व्हाट वी डिड, वी टुक पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का नाम है रिएक्शन का। थैलिमाइड जो हमने यूज किया इसमें, गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है, N नेगेटिव K पॉजिटिव, इसको हमने ट्रीट किया बच्चे इथाइल क्लोरोएसिटेट से। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप R लगा सकते, H की जगह मैं ग्लाइसिन बनाने जा रहा हूँ, अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे CH2 की जगह क्या लगा लीजिए, R, जैसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे R कैन बी H, अगर H लग गया इट इज ग्लाइसिन। क्लोरीन माइंड सा इफेक्ट करता है आपको पता है, सो क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल बन के इसने यहाँ अटैक किया और इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आपको क्या मिल गया बच्चे, यू गॉट दिस कंपाउंड CONCH R C डबल बॉन्ड O
OC2। फिर हमने इसकी क्या कर दी बच्चे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस वाटर ओब्लिक H पॉजिटिव। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ करेगा बच्चे, यहाँ जहाँ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये हर जगह हाइड्रोलिसिस कर देगा, यहाँ भी कर देगा, N नेगेटिव H पॉजिटिव, N नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, इधर OH मिल जाएगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव, माइनस इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, माइनस वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे यहाँ पे बच्चे, आप देख रहे हैं। एंड व्हाट वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, 1 वी गेट थैलिक एसिड रहा है, प्लस अदर कंपाउंड वी गेट NH2, N नेगेटिव H पॉजिटिव, NH2 CHR COOH, that is alpha amino acid. In this way we can synthesize अल्फा अमाइनो एसिड्स। हमारे सिलेबस में बच्चे दो ही प्रेपरेशंस हैं, वन इज वेरी सिंपल, वन इज स्ट्रैकर सिंथेसिस, सेकंड वन इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। वापस चलते हैं अपने हम ओरिजिनल ई कंटेंट पीडीएफ पे। उसके बाद बच्चे ज्विट्राइन का कंसेप्ट ये मैं पहले समझा चुका हूं आपको कि ज्विट्राइन क्यों बनाता है अमाइनो एसिड, है ना, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ज्विटर मीन हाइब्रिड, जर्मन वर्ड है ये। well known zwitterine amino acids are the most well known zwitterines. They have amino group which is positive and carboxyl group which is negative. There is an internal transfer of hydrogen from COH group to NH2 group. ये मैं आपको पहले बता चुका और ये आप समझते भी हैं। NH COH से H पॉजिटिव का ट्रांसफर हुआ है इसको, it has a lone pair, है ना। So we got zwitterine, पॉजिटिव चार्ज N के ऊपर ही देना चाहिए, यहाँ नहीं, COO नेगेटिव, we got zwitterine। ठीक है, अमाइनो एसिड exist even in solid state. अमाइनो एसिड ज्विट्राइन फॉर्म में ना सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करते बट इवन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी ये बच्चे इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते इन द फॉर्म ऑफ डाइपोलर आयन। अमाइनो एसिड ग्लाइसिन हैज द फार्मूला दिस, हाउएवर अंडर न्यूट्रल कंडीशन इट एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ज्विट्राइन। अगर आप इसको न्यूट्रल कंडीशन देते हैं, एक चीज याद रखना बच्चे, अगर आप इसको कंडीशन चेंज करके दें, जैसे आप इसको बेसिक कंडीशन दे दें, बेसिक कंडीशन, अब इसको बेसिक कंडीशन देंगे तो अंडरस्टूड है जो NH3 पॉजिटिव H पॉजिटिव से रेड कर जाएगा OH नेगेटिव से, बेसिक कंडीशन दी। इन दैट केस इट विल नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विट्राइन, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कार्बन आयन फॉर्म। अगर आप इसको एसिडिक कंडीशन दे देते हैं H पॉजिटिव तो इससे कंबाइन कर जाएगा, इन दैट केस इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस आयन। तो इसलिए वो लिख रहा है कि न्यूट्रल कंडीशन अगर आप देते हैं, it exists in the form of zwitterine, which can be regarded as having been produced by internal neutralization reaction. ये कैसे बना होगा बच्चे, internal neutralization reaction, that is by reaction of the carboxylic group with the amine. Internal neutralization, इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। The basic group reacted with the acidic group. Hopefully ये भी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चे। तो अब जो नेक्स्ट है रिएक्शंस, ये हम कल देखेंगे, अदरवाइज आपके लिए ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा। यहां तक जो हमने आपको अंडरस्टैंड करवाया या कोशिश की, कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू कैन आस्क, शाबाश बोलिए, एनी क्वेश्चन एनी डाउट यू कैन आस्क, बोलिए बच्चे, एनी डाउट बच्चे।